It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Commerce Study Club of Shankarlal Khandelwal Arts, Commerce and Science College, Akola. I welcome Honorable Chairperson Dr. J.M. Sabu sir, Principal of our college. I also welcome Dr. P.M. Pisolkar sir, Head Faculty of Commerce, Professor Sumit Kavre sir, Head Department of Business Economics, Dr. Piyush Nale sir, Head Department of Business Management, all teaching staff of our college who are joined us on online mode, and my dear students. A very good morning and warm welcome to all of you. We all gather over here for Wealth Awareness Program to learn powerful principles to achieve your financial goals, which is financial, educational and initiative by Advisors Organization. Advisors Organization is leading training and development organization. It provides soft skill trainings, health, wellness training, and financial awareness training. It organizes seminars, webinars, or workshop trainings in profound corporates, professional organizations, and educational institutions, IT sectors, government and semi-government organizations, bank, associations, and hospitals. Advisors Organization on behalf of SEBI and AMFI, that is Association of Mutual Funds in India, proposed to initiate a wealth awareness program. They conduct training for educating pupils to help them to understand both conceptually and practically to use financial awareness to build long-term wealth in life. Now, I would like to invite our respected principal, sir, Dr. J.M. Sabu, sir, who is always motivate our student to say few words and enlighten us. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. At the very outset. आवाज कम आ रहा है. Hello. हाँ, अब आ रहा है? हाँ Hello. सर, आ रहा है. आ रहा है? Can you हाँ, listen? आ रहा है सर. हाँ. So at the very outset, I congratulate all departments of commerce of our college and advisors organization who conducts wealth awareness programs for the people to learn powerful principles to achieve their financial goals. On the inauguration of this Commerce Study Club, I wish all the students that being the student of commerce faculty, you should know how to deal with the financial transactions, how to commerce with the world. Because all of us know that being human being, we are social, and in our society, we have created in olden days barter system, and now we live our lives with the help of currency. And when we have started using this currency, it is very important to know how we have to deal it with. So this advisors organization and our all commerce departments, they teach you that how to grow, how to increase this wealth, or how to keep it right in our lives. So wealth awareness programs are very important. So far as the management is concerned, there are so many things which we have to deal with while managing all these financial things. So while financing these things, automatically, when we do something, principles emerge for doing so many things.
some principles come into the existence, because the same thing goes on repeating itself, and automatically this repetition gives birth to different rules, and for following those rules we have to follow some principles. So to learn such principles, it is very essential to deal with our financial awareness, our wealth, and all the things we do being the students of commerce. So for this workshop, I congratulate Department of Commerce, that is head of the department Pisodkar sir, Kavle sir, Dr. Archana Khandelwal madam, Dr. Piyush Nanle for organizing such a what we call beautiful program for the students. At the same time, on the behalf of the college, I thank advisors organization for joining with us to make our students aware of wealth awareness program and to teach them the principles for achieving financial goal. Thank you very much. And by this, I declare that the inauguration of Commerce Study Club is done. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Hello. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. We are honored and privileged to have you among us, sir. Thank you very much. May I now give the introduction of our guest for today's seminar. We have among us Mahima Pandey, madam. She has completed her education in MA in Economics, MCom, and she has got the certification of NISMVA Mutual Fund Distributors, and her professional experiences are finance executive in Agron Remedies Private Limited. She has worked as an operations executive in Carvi Stockbroking Company, and she has conducted number of training programs, more than 75 training programs in English till now of all AMC and exchange, that is ICICI Mutual Funds, L&T Mutual Fund, Sundaram Mutual Fund, and BSC and NSC. So, without taking too much time, I request Dr. Mahima Pandey, madam, to start the session. One request is for you, madam. Please start the session with English, Hindi, or Marathi. English, please use lower English and Marathi and Hindi more. Hello. I know Hindi and also English, but I don't know Marathi. Yeah, you speak in Hindi, madam. Okay, thank you. Okay. Yeah, first thank of you. all, I just take over the session, ma'am. Can I? Yes, Archana, yes, madam. Yes, madam. Okay. So very warm welcome to all of the participants of Shankarlal Khandelwal College. Thank you so much, Piyush sir, Archana ma'am, for giving me the permission, and I just welcome to principal sir also. Now, the Harmony Talks and BSc are pleased to extend a warm welcome to everyone gathered here to this workshop on financial basic for young professionals. Financial conversation with all family members together are not common in our society. Parents often do not participate in financial discussion at home. Our curriculum does not include financial education as a subject. As a result, teens get into a habit of spending rather than savings, and many do not have basic financial awareness. Poor financial wellness of employees start with lack of financial education as a student. Financial literacy not only reduce gender gap, it will also help young professionals to grasp the importance of organizing their money and to meet life demands after college. Make financial decisions that are not right, wise to build the wealth.
The session by Harmony Talks is supposed by BSc Investor Awareness Program. I just welcome to Ms. Mahima Pandey, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks to all of you. So, good morning to all of you. And I am Mahima Pandey, presenting this session today and welcoming you all in this financial awareness program. So participants, आज यहाँ पर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं तो फ्यूचर में हमारे कोई भी फ्यूचर की जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमको वो हेल्प करते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को जितनी जल्दी हम अर्न करना शुरू कर दें उतनी ही जल्दी हमको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमको वो हमारे हेल्पफुल हो, उनसे हमको इतना वेल्थ क्रिएट होके मिल सके कि हमारे जो भी फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स हैं, लाइक अगर आप देखिए कल को जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब करते हुए आपके सामने एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है, आपके रिटायरमेंट का, ठीक है, क्योंकि देखिए आज के समय में कहीं भी कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, ठीक है। तो देखिए हमको अपने रिटायरमेंट लाइफ के बारे में अभी से सोचना होगा कि हम आफ्टर रिटायरमेंट अपने खर्चे को कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तो क्या है ना कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमको पर मंथ सैलरी मिल रही होती है, ठीक है, तो हमारे जो भी खर्चे हैं उससे हम पूरे करते हैं। बट जब हम रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, हम कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई अर्निंग नहीं है हमारी, तो हम उस समय किस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए समय के साथ साथ हमारी कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेस इतनी सारी हैं, तो वो सब चीजें होती हैं, तो हम उनको उन खर्चों को किस तरीके से मैनेज करें उस समय, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के बारे में भी हमको अभी से सोच समझ के चलना होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी कि भाई कितनी वेल्थ हमको उस समय क्रिएट करनी होगी, कितना उस समय इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन, हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करके हमको अच्छे रिटर्न दे सके। तो देखिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, उसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो हम कहाँ करना चाहिए, ये भी हमको सही नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो राइट ट्रैक में कर सकें। अगर देखिए आज भी हम पुराने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एफडीआरस में कर रहे हैं या फिर अपना पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कर रहे हैं, तो देखिए वहां पे आपको 6-7% के रिटर्न मिल जाते हैं। बट लेकिन देखिए फ्यूचर के लिए अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि इतने रिटर्न्स में हम फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या फिर हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। देखिए हमारे कई सारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जैसे एक तो मैंने कहा अगर हम जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट तो हमारे सामने है ही है, उसके अलावा हमारा मान लीजिए अपना कोई हाउस परचेज करने का गोल, या फिर अपनी कोई कार परचेज करने का गोल है फ्यूचर में, या फिर और भी कई सारे गोल हो सकते हैं हमारे। तो इन सभी गोल्स के लिए हमको इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करने हैं जो फ्यूचर में जिस तरीके का इन्फ्लेशन हो उसको बीट करके हमको उससे ऊपर के रिटर्न दे सके। तो इसलिए हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने का तरीका चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमको देखिए आज के समय में अगर हमको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने, अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। बट देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी एक चीज क्या है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि देखिए जहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स होंगे वहां पे उतना ही ज्यादा रिस्क भी होगा, ठीक है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप गेन कर सकते हैं हाई, बट अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में आपको और ऑप्शंस होते हैं। बट अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप वहीं से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है। सो आज हम यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर हम इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से हमको करना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उससे पहले क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन सब चीजों को समझकर हम आगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक हार्मनी टॉक्स एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एडवाइजर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस सेशन को यहाँ पे आज कंडक्ट करवाया है, एंड यू ऑल द पार्टिसिपेंट जो अपना हमको यहाँ पे समय दे रहे हैं। देखिए आज के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो अभी आगे जॉब करना स्टार्ट करेंगे, देखिए आज के समय में हमारे ना स्कूल एजुकेशन में फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दी जाती हमको,
कि आगे जब हम अर्न करना शुरू करेंगे तो अपने पैसे को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसको में से कितना पैसा हम कितना परसेंट सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना हम स्पेंड करें, किस तरीके से मैनेज करें पैसे को, तो ये एजुकेशन हमको नहीं दी जाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम अर्न करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर आज के समय में बच्चों के अंदर क्या हैबिट हो गई है, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की, ठीक है। तो अपना पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमको कई बार अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा कमाते हुए भी हम लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हम फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे अपने। और देखिए कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं वो लोग अपने घर में फाइनेंस से रिलेटेड बातें नहीं करते, ठीक है। उन्हें नहीं आइडिया होता है कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से उनको जब वो अपना कमाना स्टार्ट करते हैं, अपना अर्न करना शुरू करते हैं, तो उस समय उनको प्रॉब्लम्स आती है अपने फाइनेंस को लेकर मैनेज करने की, ठीक है। उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा वो क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। इसलिए जब हम कुछ सेव ही नहीं कर पाएंगे तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। देखिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले सेव करना जरूरी है। जब आप सेव करेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप अपना बजट बनाएं, प्रॉपर बजट से चलें। आपको पता होना चाहिए क्या आपके जरूरी खर्चे हैं, उनमें पैसा लगाएं। उसके अलावा अगर पैसा आपके पास बचता है तो उसमें से अपने इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएं। उसके अलावा देखिए हमारे करिकुलम में आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ही बच्चों को फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज नहीं होती। तो जरूरी है कि हमारे करिकुलम में ये भी एक सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसको ये फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि जो आजकल के यंग एडल्ट्स हैं वो लोग अपनी जो सेविंग करने की हैबिट है उसको खोते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले के समय में हमारे पेरेंट्स जो थे हमको अब पैसे को गुल्लक में एक एक रुपया भी सेव करना सिखाते थे। बट आज के समय क्या है, ये हैबिट हमारी जाती जा रही है। हम लोग जो मिलता है, जो भी हम अर्न करते हैं मंथ के एंड में, उसमें से पहले अपने सारे खर्चे कर लेते हैं। और जब और ऐसे भी खर्चे कर लेते हैं जो कि अननेसेसरी है, जो जरूरी नहीं है खर्चे। क्योंकि देखिए आज के समय में आप सभी देखते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बहुत सारी हैं, जिसमें घर बैठे बैठे हम इजिली परचेज कर सकते हैं कोई भी चीज, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमको घर बैठे बैठे कोई चीज अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, और हमने बिना सोचे समझे परचेज कर लिया। तो ऐसा इसलिए इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सेविंग नहीं कर पाते, और सेविंग नहीं कर पाते तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम नहीं सोच पाते। तो सेविंग अगर आप करेंगे तभी आप अपना फाइनेंशियल प्लान आगे सही से कर पाएंगे। तो जो भी आप अर्न करें तो उसमें से पहले देख लीजिए आप कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, फिर जो बचे उसको आप खर्च करें। इससे आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे और साथ ही साथ आपके जो भी खर्चे हैं वो भी आपके पूरे होते रहेंगे। क्योंकि आज के समय में हमारे लाइफ स्टाइल के खर्चे इतने सारे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम नहीं बचाना, अगर मतलब हमको हम नहीं सोचते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम सारा पैसा खर्च कर देंगे और लास्ट में बस कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सोच समझ के अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो हमारी फाइनेंशियल वेलनेस है वो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आज के समय में जो आज के समय में बच्चे अच्छा भी अर्न कर रहे हैं, फ्यूचर में अच्छा अर्न करेंगे, उसमें से भी कई लोग अच्छा अर्न करने के बावजूद भी वो लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि भाई हम पैसा तो अर्न करते हैं, अच्छे सब कुछ कमा रहे हैं, बट देखिए उसके बाद भी हमारे इतना पैसा नहीं बचता जितना बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कोई मंथली बजट रेडी नहीं है, उनको नहीं आइडिया कि वो कितना जो कमाते हैं उसमें से कितना खर्च कर देते हैं, है ना। इस वजह से हमको प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा देखिए आज के समय में हमारी ईएमआई इतनी सारी हैं, हम हर चीज ईएमआई पे परचेज कर लेते हैं। जब हमारी आउटस्टैंडिंग ज्यादा होंगी, हर महीने पैसा हमारा आउटस्टैंडिंग में निकलेगा, तो हम कैसे पैसे को सेव कैसे कर पाएंगे। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो जाते हैं हमारे, हम खरीदते वक्त क्रेडिट कार्ड से फटाफट से खरीद लेते हैं, बट जब उसके बिल सामने आते हैं तो उस समय हमको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। पहले देख लीजिए आप कितना मंथ में खर्च कर सकते हैं और कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे और खर्चे करेंगे तो आपको फ्यूचर में इससे बहुत हेल्प होगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छी एक समय के बाद आपको वेल्थ क्रिएट होकर मिलेगी। तो देखिए हमको हैबिट डालनी होगी इन्वेस्टमेंट करने की। हर महीने जो भी हम अर्न करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हमको हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। इसके अलावा देखिए आज के समय में जो 22 to 23 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो लोग तो ज्यादा सोचते भी नहीं है। जब वो अर्न करने लगते हैं, ठीक है, वो लोग अपने जो इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट खर्च कर देते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। उसके बाद वो केवल 11% ही आज के समय में अपनी इनकम का सेव कर पाते हैं, जो कि बहुत कम है।
ठीक है, हमको इससे ज्यादा अपनी इनकम का सेव करना चाहिए। अगर हमारे जरूरी खर्चे नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो पैसों को सेव करिए और सेव करके उसे इन्वेस्ट करिए, ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सके, फ्यूचर में आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करने में उससे हेल्प मिल सके। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज के समय में क्या है, हमारे बहुत ज्यादा सोर्सेज ऐसे हो गए हैं जहां से हमको हमारी आउटस्टैंडिंग जो है बढ़ती जा रही है। जैसे हमको कार परचेस करी है वो ईएमआई पे, लैपटॉप परचेस किया ईएमआई पे, तो हमारी ईएमआई बहुत सारी हो गई हैं, हमारे डेट बहुत सारे हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, जब सैलरी आती है आज से पैसा तो वहीं चला जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग सेविंग भी नहीं कर पाते, और सेविंग नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे। तो हमको इन सब चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, जितनी इनकम हो उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना पैसा खर्च करना चाहिए। देखिए, आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करना चाहते हैं, है ना, ताकि उनकी एक समय के बाद अच्छे उनको इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न मिल सके, उनके फाइनेंशियल गोल पूरे हो सके। बट कई बार क्या होता है, उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलता, उनको कोई सही एडवाइजर नहीं मिलता। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उनको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग समझ नहीं आ पाती, वो किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करें। ठीक है ना, तो जिस वजह से क्या होता है, जब वो अपना जो भी पैसा वो अर्न करते हैं वो सही जगह नहीं लगा पाते। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर कोई किसी को कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, ठीक है, और उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, तो वो लोग भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हैं आप समझ के करें। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां किस फंड में कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये सब बातों की हमको नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, और फ्यूचर में उससे हमको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स हमको चाहिए, ताकि हम उस समय जो भी हमारा गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, चाहे रिटायरमेंट हो, या फिर हमारा बच्चे की हायर एजुकेशन हो, हमारे बच्चे की मैरिज हो, या फिर आपका कोई कार परचेस करने का हो गोल, या फिर आपका कहीं फॉरेन हॉलीडेज में जाने का गोल हो, तो वो सब हम पूरा कर पाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल वेलबींग क्या है। देखिए, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अगर हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है। हमको इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारे जो भी प्रेजेंट में है गोल फाइनेंशियल, और जो फ्यूचर के हैं वो हम अचीव कर सके। और कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इवेंट, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हमारे सामने आ रहा है, उसको हम मैनेज करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहे। हमारे पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, जहां से अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने अचानक से आ जाती है। कई बार कुछ चीजें ऐसे होती है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमको पता नहीं होते, अचानक से आ जाते हैं। तो ऐसे समय के लिए भी हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जहां से हम उसी समय पैसा विड्रॉ कर सकें। इजीली विड्रॉल वहां पे होनी चाहिए, इजी लिक्विडिटी वहां पे होनी चाहिए, तो जिससे कि हमको उस समय इधर उधर से पैसे को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ देखिए, हमको एक रोड मैप की जरूरत होती है, जिससे हम सही डायरेक्शन में अपने फाइनेंशियल प्लान को कर सके। वो भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम आगे जो हमारी लाइफ की बिग पिक्चर है उसको सही से देख सकें। तो देखिए, इसकी राइट अप्रोच क्या है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे कहा, आपको सब जो आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उस अर्न किए हुए पैसे को सोच समझ के सही डायरेक्शन में, सही फंड में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप स्पेंड करिए। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, आपने हो सकता है नाम सुना हो वॉरेन बफेट का। बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर करके अपनी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है। ठीक है ना, तो देखिए, इनका कहना यही है कि जो भी आप अर्न करते हैं उसमें से सबसे पहले सेविंग करिए, और सेविंग करने के बाद जो बचे उसे आप खर्च करिए, जिससे आपकी सेविंग भी होंगी और आपके खर्चे भी प्रॉपर चलते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल गोल सेटिंग्स की, देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बात करी, फाइनेंशियल गोल हमको अपना अचीव करना है। फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए हमको, जब हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो पहले ही हमको अपना फाइनेंशियल गोल बनाना होगा, फिक्स करना होगा कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है। हमारा फाइनेंशियल गोल हाउस परचेज करने का है, तो हाउस हमको कितने समय परचेज करना है, और अभी से हमको हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कि हम जब हाउस परचेस करना चाहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो उस समय तक हमारे जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उतनी हमको मेच्योरिटी के साथ मिल सके, उस समय इतना पैसा वहां पे बन जाए। तो ये आपको समझना होगा पहले, ठीक है। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल गोल बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका फायदा क्या होता है कि हमको फ्यूचर में जब भी जितनी जरूरत होती है पैसे की,
उतना पैसा हमारे पास होता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमने हर महीने इतना इन्वेस्टमेंट किया और इस इतने समय तक वो पैसा हमको मेच्योरिटी के साथ इतना मिलेगा, है ना। तो हम उससे इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बट आपने अगर बिना सोचे समझे रैंडमली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, पैसा तो आपके पास फ्यूचर में होगा, बट हो सकता है जितनी जरूरत आपको उस समय है उतना पैसा आपके पास ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तो पहले अपना एक गोल बना लें कि आपका क्या गोल है, उसकी कैलकुलेशन कर लें कि अगर आपको 4 साल बाद हाउस परचेज करना है तो 4 साल बाद हाउस परचेज करने के लिए कितनी पैसों की जरूरत होगी और हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि उतना पैसा तब तक का हमारे पास बन जाए, उतनी हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाए। ठीक है, अगर कोई कार परचेज करनी है, कहीं फॉरेन हॉलीडेज में जाना है, 1 साल बाद आपको मान लीजिए फॉरेन हॉलीडेज में जाना है, तो 1 साल के अंदर आपको कितना पैसा हर महीने जमा करना होगा इन्वेस्टमेंट में कि आपको 1 साल बाद ठीक ठाक पैसा वहां से मिल जाए, जिससे कि आप अपना फॉरेन हॉलीडेज आराम से कंप्लीट कर लें। इमरजेंसी फंड, जैसे मैंने बोला, इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की एजुकेशन का अगर हमारा गोल है, फ्यूचर में हम चाहते हैं हमारे बच्चे की हाई एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, तो हम पहले से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, पहले से अपनी वेल्थ क्रिएट करके रख सकते हैं। देखिए कि जब हमारे बच्चे को हाई एजुकेशन के लिए जाना है जितने समय बाद, उतने समय में क्या इन्फ्लेशन रेट होगा, उस समय कितनी वो एजुकेशन महंगी हो सकती है। तो उसके लिए हम अभी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, और जब बच्चा हाई एजुकेशन के लिए जाए तो उस समय तक हमारे पास उतनी वेल्थ क्रिएट हो जाए जिससे कि हमारी बच्चे को जो फीस है उसमें हमको देने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चे की मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जॉब करते हैं तो हमको रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी अर्न करना शुरू कर दें, उतनी ही जल्दी अपने रिटायरमेंट के बारे में भी प्लानिंग करना शुरू कर दें। अब मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ना, रिटायरमेंट तक आपको उतना ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होकर मिलेगा। अगर हम सोचे चलिए अभी तो बहुत कम, अभी तो जॉब लगी है 23-24 साल या 25 साल की उम्र में, अभी जरूरत क्या है सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की, तो क्या होता है कि हम ना खर्चे बढ़ते जाते हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट को नहीं बना पाते। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बहुत देर से अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो पैसा तो बनता है, बट उतना नहीं बनता जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से हमारा बनता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करने की हमको हैबिट डाल लेनी चाहिए अर्न करते ही। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो देखिए, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि समय के साथ साथ हमारे पैसे की जो वैल्यू है उसको कम करता जाता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम आज कोई चीज 100 रुपए में परचेस कर पाते हैं, ठीक है, तो आने वाले 1 साल या 2 साल बाद जरूरी नहीं है वो चीज हम 100 रुपए में ही परचेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि कितनी तेजी से महंगाई बढ़ी, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे आपका एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट हो, चाहे आपका पल्सेस के रेट हो या मेडिकल एक्सपेंसेस हो, सबके सब महंगे होते गए, है ना। तो अगर आप कल अपना घर के ग्रोसरी का सामान लाने के लिए 10,000 रुपया 15,000 रुपये पे करते थे, तो आज आपका ग्रोसरी का सामान उतने में नहीं आ सकता, क्योंकि चीजों की वैल्यू बढ़ गई है और उसके लिए आज हमको ज्यादा रुपया वहां पे देना पड़ता है, जिससे कि हमारे पैसे की वैल्यू घट गई है। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन क्या करता है, समय के साथ साथ हमारे पैसे की वैल्यू को कम करता जाता है। तो अगर देखिए, अगर हम पैसे को घर पे सेव करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल गोल के लिए हम घर में पैसे को सेव करते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं, तो इसका हमको क्या नुकसान होगा कि हम फ्यूचर में जब भी हमको जरूरत होगी पैसे की, तो उस समय वो पैसा हमको हमेशा कम दिखाई देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पैसे की तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं अगर हम घर में रखेंगे उस पैसे को। तो जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, फ्यूचर में कोई चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहां पैसे की आपकी वैल्यू बढ़ती है, वहां पे आपको कंपाउंडिंग गेन का फायदा मिलता है। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया भी गया है कि अगर मान लीजिए 2020 में हमको 30,000 रुपये अपने मंथली खर्चों के लिए पे करने पड़ते थे, ठीक है, 30,000 में हमारे सारे खर्चे हो जाते थे, तो 2025 में हम 30,000 में सारे खर्चे पूरे नहीं कर सकते, उसके लिए हमको 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 2035 में 60,000, 2040 तक हमको 80,000 रुपये तक अपना पे करना पड़ सकता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो जितना जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतनी तेजी से हमारे पैसों की वैल्यू को भी वो डिक्रीज करता जाएगा। अगर पैसों की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको जल्द से जल्द हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्फ्लेशन से हमको फाइट करनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है?
इन्फ्लेशन को हराने का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करिए, और केवल सेविंग पे डिपेंड मत रहिए, सेविंग से आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट्स करिए। उसके बाद अलावा देखिए, पैसे को घर पे रख के वेस्ट मत करिए, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए, क्योंकि देखिए हम भी पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं सभी लोग, है ना। जब हार्डवर्क करके हम पैसे को अर्न कर रहे हैं तो हम उस पैसे को आंख बंद करके तो कहीं नहीं लगा सकते ना, क्योंकि भाई हमने किसी ऐसी औंजी पौंजी स्कीम में लगा दिया और कल को वो कंपनी भाग गई तो हम क्या करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो सोच समझ के करें, पूरी सिक्योरिटी के साथ करें, ये देखें कि भाई जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है। जैसे हम बैंक में अपने पैसा रखते हैं तो हमें पता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो हमको पता है कि अगर कल को बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आरबीआई जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो जो जो कि आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है, जिनके रूल्स रेगुलेशन आरबीआई बनाता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स में या फिर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है वो भी हमको पता होना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वो हमारी इनकी कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वो एएमसी सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे जो स्टॉक, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो जहां से हम ओपन करवा रहे हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सब चीजें हमको पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद हमको अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपना जब भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे 14 to 16% तक के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। बट डायरेक्ट इक्विटी में देखिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि किस कंपनी का आपको शेयर्स परचेज करने हैं ये आपका डिसीजन होता है, ठीक है। तो वो शेयर्स आपको कल को अच्छा रिटर्न दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो इसको जानने के लिए आपको पहले पूरा रिसर्च करना होगा, पूरा एनालाइज करना होगा मार्केट को, ठीक है, कि भाई उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इस समय उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी हेल्दी बैलेंस शीट है या नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा डेट तो नहीं है, ज्यादा उधारी तो नहीं है। अगर उधारी ज्यादा होगी तो वो कैसे आपको अच्छे रिटर्न देगी, है ना। तो इसलिए पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, समझ लें, ठीक है, तभी अपना पैसा डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए जहां ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न होगा वहां पे ज्यादा रिस्क भी होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 to 12% के रिटर्न मिल जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको आपका पर्पस क्या है, कितना टाइम होराइजन आपके पास है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ के समझनी होंगी। उसके बाद आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझ जब आपको आए तभी इन्वेस्टमेंट्स करिए। इसके अलावा देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी लोग इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो 7% के रिटर्न मिल जाते हैं। अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप कर सकते हैं 7% के, गोल्ड में आप कर सकते हैं जहाँ 7.5% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी में 5 to 10% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। तो अब ये आपको समझना है कि आपको कितनी जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है, और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको अच्छी वेल्थ फ्यूचर में क्रिएट करके दे सके वाकई में। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी हमारे पास कैपिटल है, हमारे जो भी असेट्स हैं, उनको ना हमको बहुत ढंग से एलोकेट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपना सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर दें, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम म्यूचुअल फंड की किसी एक ही स्कीम में अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दें, या फिर गोल्ड में अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको हर ऑप्शन में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी एक टाइम पीरियड में हो सकता है कहीं से हमको कम रिटर्न मिल रहे हो और कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट से हमको ज्यादा अच्छे रिटर्न आ रहे हो, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो बैलेंस रहे, तो इसके लिए हमको अपना एसेट एलोकेशन भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। एक ही जगह पे अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए। मैंने बोला था अभी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपका है रिटायरमेंट का पर्पज, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो इक्विटी सबसे बेटर है। अगर आपके पास अभी 25 साल है, 20 साल है रिटायरमेंट के, 30 साल है, तो 20-30 साल में इक्विटी आपको, अगर आप कंटिन्यू डिसिप्लिन तरीके से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होकर मिल सकती है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप
डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेट में इन्वेस्ट करिए। वहां पे रिटर्न तो फिक्स नहीं होंगे, बट वहां पे आपका रिस्क इतना नहीं होगा जितना इक्विटी में होता है। इसके अलावा देखिए आपको जो भी पोर्टफोलियो है उसको प्लान करते वक्त देखिए कि कितना टाइम होराइजन आपके पास है ना, कितने समय के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल क्या है, क्या पर्पज है आपका, गोल जरूर फिक्स करें अपना, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अभी कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं, क्योंकि जितना रिस्क लें उसी के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करें। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 6 महीने बाद उन्हें पैसे अगर थोड़ा सा नीचे दिखता है तो पैनिक हो जाते हैं, है ना, और सोचते हैं कि भाई पैसे को निकाल दो कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। तो इस तरीके के अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा रिस्क वाले इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जितना आपका रिस्क लेने की क्षमता हो उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। और देखिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का एक रूल भी होता है, 100 माइनस एज। जितना 100 में से जितनी आपकी एज है उसमें जो बचता है उतना % आपको अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा देखिए इक्विटी में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो देखिए इक्विटी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमको डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे कई सारे कंपनीज के शेयर्स स्टॉक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स स्टॉक्स में हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था कि अपना एसेट एलोकेशन हमको बहुत सही से करना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ही जगह सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे रिटर्न बहुत हाई है, लेकिन जो कि इन्फ्लेशन को फाइट करके हमको रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहे तब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वहां से, और इजी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप पैसा रिडम्पशन कर सकते हैं या फिर उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स कैटेगरीज होती है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, वो आप देखकर उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम वही इक्विटी के इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो बहुत ज्यादा मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है, तो वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तब भी तो वो म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ फायदा क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा एक पर्टिकुलर एक फंड में पूल करते हैं। उस फंड का जो पैसा होता है उसे मैनेज कौन करता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, ठीक है, जिसे एएमसी अपॉइंट करती है एक पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने के लिए। तो उसको उसके बाद देखिए पूरी एक्सपर्टीज होती है, उसे मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, उसे मार्केट पूरा एनालाइज करता है और देखता है कि भाई कब किस स्टॉक्स में शेयर्स में पैसे को लगाना है, वहां से अच्छे रिटर्न जनरेट हो सके, तो वो सोच समझ के हमारे पैसे को शेयर्स और स्टॉक्स में लगाता है और अच्छे रिटर्न जनरेट होने पे हम लोगों को डिलीवर करता है। तो यहाँ पे हमको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है जो कि हमको हमारे रिस्क को थोड़ा कम कर देता है। इसके अलावा देखिए कन्वीनियंस होते हैं, क्योंकि देखिए पेपरलेस होते हैं, आजकल ऑनलाइन केवाईसी हो गई है, आपने एक बार ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट कर ली उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड का फोलियो क्रिएट हो जाएगा, और जो भी आपने डेट फिक्स करी है एसआईपी के लिए, जो भी आपने डेट फिक्स की, जो भी आपने अमाउंट फिक्स की है, ठीक है, दोनों ही चीजें डेट और अमाउंट, उस डेट को उतना फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कट के अपने आप से उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। आपको बार बार कहीं जाके अपना इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है, एक बार आपको केवल अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है। आप चाहे तो फिजिकल केवाईसी कर सकते हैं, चाहे से आप ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्केट को आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मार्केट देखना चाहिए, समझ आपको भी आनी चाहिए। उसके अलावा अपना जो पोर्टफोलियो उसको बैलेंस करते रहिए, रीबैलेंस करिए, उसको टाइम टू टाइम व्यू करते रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं और इस पैसे को मुझे निकाल के दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस तरीके से अपने जो पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करते रहे। इसके अलावा देखिए आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसे आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए हमको फाइनेंशियल गोल बना के अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल गोल बना के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें हमको क्या होता है, जब जरूरत होती है पैसे की, जितनी जरूरत होती है उतना पैसा हमको मिल पाता है। लेकिन अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप केवल 500 रुपए की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लमसम भी, अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा है काफी, तो आप मिनिमम 5000 होता है जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5000 से नीचे लमसम नहीं होता, उस 5000 से ऊपर आप उसके बाद कितना भी पैसा
जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए टैक्स सेविंग का भी इसमें ऑप्शन होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको साल के एंड में अपना टैक्स सेव करना है, तो इसमें अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलती है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का अपना बचा सकते हैं यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके। और फायदा क्या है, बहुत ही कम लॉक इन पीरियड है। आपको केवल 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप वहां से पैसा भी निकाल सकते हैं। जबकि अगर आप पीपीएफ में या एनपीएस में या गवर्नमेंट की एफडीआर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां 5 साल के बाद या 15 साल, इतने ज्यादा आपके टाइम पीरियड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड मिल जाता है और इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होने की वजह से अच्छे रिटर्न भी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा एक केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करिए और म्यूचुअल फंड का उसके बाद फोलियो क्रिएट हो जाएगा और हर महीने आपकी एसआईपी वहां से डिडक्ट होती रहेगी। इसके अलावा देखिए एक केस स्टडी में ये देखा गया है कि कोई एक मीनल है जो 28 ईयर्स की है और वो आईटी एम्प्लॉय है और वो अपनी सैलरी का 60% सेव करती है, ठीक। और उनका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओनली वन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उनके पास, जो कि पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड, उसके जो कि उनके फादर ने ओपन कराया है। तो अब यहाँ पे हम पीपीएफ और म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन को समझेंगे कि अगर हम पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक तरफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ हमको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखिए, अगर हम पीपीएफ में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 सालों के लिए और 7.1% का हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 15 साल के लिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है, तो 15 साल के लिए आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, 7.1% का आपको रिटर्न मिला वहां पे, ठीक है। और इधर आपने म्यूचुअल फंड में भी 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वहां आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, और 10,000 पर मंथ दोनों में ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे पीपीएफ हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपने 15 सालों तक 10,000 हर महीने इन्वेस्ट किया, तो कितना आपको मेच्योरिटी मिली है, 32 लाख पीपीएफ, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में आपको 42 लाख। तो 10 लाख का आप सीधे सीधे फर्क देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है। इसके अलावा देखिए, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपको अच्छा फ्यूचर में जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो दिखाई देगा। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, और जितने लंबे समय तक आप मार्केट में इन्वेस्टेड अपने पैसे को रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम 15 सालों के लिए और एक तरफ 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हमको 10% का ही रिटर्न मिल रहा है दोनों में, और 10,000 पर मंथ ही हमको वहां पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, 15 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको मिला 42 लाख रुपया। लेकिन अगर हम 15 साल में ना निकाल के उससे थोड़ा सा 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दें, 20 सालों की म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो वही पैसा हमारा 76 लाख हो जाएगा, जिस जो कि फर्क कितने का है, 34 लाख रुपए का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, जितने लंबे समय तक आप मार्केट में पैसे को इन्वेस्टेड रहने देंगे, उतना ही ज्यादा आपको इक्विटी में फायदा मिलता है। इक्विटी में ना जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को रखा, तो मार्केट में जितने लंबे समय तक पैसा रहता है, उसको उतना ही फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन हो गया तो आप सोचेंगे मैं पैसा निकाल लूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसे को इन्वेस्ट रहने दीजिए। और अगर आपके पास पैसा है, और ठीक है, तो जब मार्केट डाउन है, तो उस समय देखिए कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां आप पैसे को इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट डाउन में, और वो मार्केट अप होने पर आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं। तो अपना जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो अच्छे से समझ के सोच कर इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो आप एडवाइजर से किसी एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में आजकल सभी लोगों ने सुना होता है, बट क्या होता है, कई लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है, कई बार वो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक प्रूडेंट इन्वेस्टर की, तो देखिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला है, जब भी आप अर्न करना शुरू कर दें, अपने इन्वेस्टमेंट को भी स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, कुछ महीने, 6 महीने आपने एसआईपी करी, 6 महीने बाद आपने बंद कर दी कि भाई हमारा पैसा नहीं बच पा रहा, हमको एसआईपी बंद करनी है। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप कभी भी अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपने जो स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट, उसे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को करते रहिए, तभी आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहिए, पैसे को एक ही जगह सारा इन्वेस्ट ना करिए, रिस्क डाइवर्सिफाई करिए अपना।
ठीक है। जो भी हो सकता है ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपके सामने आ जाए, जो आपने सोचा भी ना हो, तो उसके लिए प्लान करके रखिए, इमरजेंसी फंड आप बना के रखिए। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, रीबैलेंस करते रहिए, और पैनिक नहीं होना चाहिए। आपने जो पैसा लगाया है, अगर थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको देख के पैनिक ना हो। कई लोग पैनिक हो जाते हैं और पैसे को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड तो अच्छा ही नहीं है, ठीक है, वहां पे पैसा डूब जाता है। ऐसा नहीं है। हमको अगर सही नॉलेज है, सही जानकारी हमारे पास है, ठीक है, हम अच्छे से समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सोच समझ के सही फंड में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट डाउन होने पे भी पैनिक नहीं होना चाहिए। पैसे को जहां इन्वेस्टेड है वहीं पे इन्वेस्टेड रहने दें। इसके अलावा अपने जो भी आपके डेट है उनको अच्छे से मैनेज करिए, जो भी आपके रिस्क है उनको अच्छे से कवर करिए, और आप टैक्स अपना प्लान कर सकते हैं यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए भी। देखिए, कैपिटल मार्केट क्या है? जो कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को सप्लायर से लेकर जो कैपिटल यूज करना चाहते हैं उन तक का वो पहुंचाता है। ठीक है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, कंपनीज के शेयर्स में, स्टॉक्स में, तभी तो वो कंपनीज हमारे पैसों को यूज कर पाती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कैपिटल मार्केट हमको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको जरूरत है उनको दे सकते हैं, और वो यूज करके हमको जो प्रॉफिट अर्न कर होता है वो हमको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टॉक मार्केट होता है जिसमें आपका इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को एफिशिएंट बनाता है, इनहेंस करता है उसको, सेविंग्स की मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, इन्वेस्टमेंट्स के वॉल्यूम्स को बढ़ाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए भी कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे हम अगर अब कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत है। तो वो फंड्स किस तरीके से अरेंज कर सकती है? एक तरीका ये भी होता है कि आप कंपनी को प्राइमरी मार्केट में लिस्ट कराएं, जिसमें आप अपनी जो सिक्योरिटीज है उसे फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू किया जाता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकता है, आप लोगों ने सुना हो। आईपीओ के थ्रू कंपनियां फंड को रेज करती हैं। ठीक है, हम इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसे को लगाते हैं। आईपीओ में हम अपने पैसों को लगाते हैं इन्वेस्टर, और जो वहां से प्रॉफिट अर्न होता है कंपनी उसको हमको डिलीवर करती है। ठीक है, इसलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। इसमें की इंटरमीडियरीज होती है, मर्चेंट बैंकर्स और आरटीए, जो कि आईपीओ का रेट डिसाइड करते हैं, और आरटीए इनका जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है वो इनका जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरा करती है। तो इसका पर्पस क्या होता है? कैपिटल रेज करना कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब जब हमने प्राइमरी मार्केट में कंपनी को लिस्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके शेयर्स को कहां से खरीदेंगे? सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट में होती है ट्रेडिंग आपकी। ठीक है, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है प्राइमरी मार्केट में, उनकी शेयर्स की ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट से आप कर सकते हैं, खरीदना और बेचना सेकेंडरी मार्केट। डीपीस आपकी इंटरमीडिएट्स होती हैं। स्टॉक ब्रोकर कौन है? जिनके पास आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आप शेयर्स को खरीदना और बेचना करते हैं, वो आप ओपन कराएंगे स्टॉक ब्रोकर के पास। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जहां आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। अगर आप ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे, तो वहां पे आपको इन दोनों अकाउंट की जरूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की और डीमैट अकाउंट की। ठीक है, इनके बगैर आप वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट म्यूचुअल फंड में आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों अकाउंट की जरूरत होती है। और जब आप इन दोनों अकाउंट्स को ओपन कराएं तो आप ये जरूर देखें जहां भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट या अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है वो सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा देखिए इनका पर्पस क्या है? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करना, और जब जरूरत हो जो इन्वेस्टर्स है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। जैसे अभी मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की बेसिस क्या है? आपको 3 अकाउंट जरूरी चाहिए, मैंडेटरी है। एक तो सेविंग अकाउंट, सबके पास होता है सेविंग बैंक अकाउंट। उसके अलावा 2 अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आप शेयर्स को खरीदना बेचना चाहते हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे, और
डीमैट अकाउंट वो है जहां पे आप अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। पहले के समय में डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, तो क्या होता था, एक जैसे हम एफडीआर करवाते हैं बैंक में, तो हमको एक उसका एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो सबूत होता है कि हाँ हमने बैंक में एफडीआर कराई है, इतने समय बाद इतनी मेच्योरिटी अमाउंट होगी, है ना। उस तरीके से पहले उसके भी एक पेपर के रूप में वो हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जब ये कुछ समय बाद 1996 में आई थिंक ये एक्ट आया था, तब ये डीमैट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था। तो उस समय से क्या है, जो भी आपके पास फिजिकल सिक्योरिटीज है उसे भी आप डीमेटलाइज करवा सकते हैं और डीमेटलाइज करवा के डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, अगर आपके पास आज भी कोई पेपर फॉर्म में है। बाकी आज के समय में जो भी आपके शेयर सिक्योरिटीज होती है वो डीमैट अकाउंट में रखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब देखिए, इन्वेस्टर्स अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या होता है। एक तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको अभी आपने शेयर खरीदा और कुछ ही मिनट बाद उसको बेच दिया, या सुबह खरीदा या शाम तक बेच दिया, ठीक है। इस ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको नॉलेज है, समझ है इतनी इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। 80% मार्केट जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा कैपिटल का लॉस होता है। तो इसलिए जिन लोगों को समझ होती है उन्हीं को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं ये, ठीक है। लेकिन रिटर्न अगर आपकी अच्छी नॉलेज है और आपने सही इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न भी इसमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो अपना शेयर्स को परचेज किया है उसकी डिलीवरी डीमैट अकाउंट में आपका स्टॉक ब्रोकर करेगा। जब आप स्टॉक ब्रोकर को फुल पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद वो आपके शेयर्स को परचेज करके आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर कर देता है, आपका ब्रोकर जो होता है, ठीक है। आप यहाँ जो शेयर्स हैं उनको आप सेल कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 महीने आप रखना चाहते हैं या फिर उससे ज्यादा समय के लिए आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, एक होती है इन्वेस्टिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। जैसे होता है कि हमने किसी अच्छी कंपनी के आज शेयर बाय कर लिए, ठीक है, अब हमको कम पैसों में मिल रहा है और हमको पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, इसके अच्छा फ्यूचर है इसका, है ना। तो क्या होता है, ऐसी हम उस कंपनी के बारे में और अच्छे से लेकिन एनालाइज करें, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखें, उसका पूरा जो आजकल तो ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो सारी इंफॉर्मेशन समझ लें अच्छे से कंपनी के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, हर चीज, ठीक है। उसके बाद हम 5 to 10 ईयर्स के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए अपना उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब चाहे तब लॉन्ग टर्म के बाद अगर लगता है कि भाई उस कंपनी से हमको अच्छे अब रिटर्न मिल सकते हैं तो हमको उस समय उसको सेल कर सकते हैं। इतने समय में कंपनी जो भी बोनस होगा, डिविडेंड होगा, जो भी डिक्लेयर करेगी वो आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप उसके पार्ट ओनर हैं, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, सेबी का क्या रोल है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया था कि हर किसी का एक रेगुलेटर होता है, आरबीआई बैंक का रेगुलेटर है, आईआरडीए इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। तो इसी तरीके से कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, सारे रूल्स रेगुलेशन सेबी बनाता है। तो देखिए, इसका काम क्या है, हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमको जब पता होगा कि भाई कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे ना। अगर हमको पता हो कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे, जैसे आपका वाला मार्केट है, बिटकॉइन मार्केट है ना, तो अगर ऐसा होगा तो एक डर बना रहता है ना। तो इसलिए यहाँ ये हमको एक 1 मिनट प्लीज। Hello, 1 मिनट प्लीज, madam. Okay. मिनट प्लीज, प्लीज गिव मी 1 मिनट। Yes, ma'am. Yes.
सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं बात कर रही थी सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना इसका काम है। तो ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा देखिए कोई भी सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट है उनको भी सेबी ही देखता है। उसके अलावा रूल्स रेगुलेशन सब सेबी के होते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए देखिए कुछ टिप्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अपना एक इन्वेस्टमेंट गोल फिक्स करिए कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आपको कोई कार परचेस करनी है, हाउस परचेस करना है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले अपना एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाइए। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको एक राइट फंड टाइप चूज करना होगा कि भाई जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने समय के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फंड सही रहेगा। ठीक है, उसमें से एक म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करिए, शॉर्टलिस्ट करिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए। जो भी आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल है उनके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करिए। ऐसा नहीं कि एक ही सभी चीजों के लिए एक ही जगह हम इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर रिटायरमेंट है तो उसके लिए अलग एसआईपी, अगर कार परचेज करनी है तो उसके लिए अलग, हाउस परचेज करना है तो उसके लिए अलग। अगर आप कर सकते हैं, आपकी इतनी इनकम है, तो आपको इस तरीके से प्लान करके अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और देखिए एसआईपी की तरफ हमको जाना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में मैंने पहले भी कहा था कि एक डिसिप्लिन बनता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है। क्योंकि हर महीने जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसमें से पैसा थोड़ा थोड़ा हमारा हर महीने इन्वेस्टेड हो जाता है स्कीम में। लेकिन लमसम भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास मान लीजिए 5,000 से ऊपर, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना पैसा है एक साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लमसम पैसा रखा है और कोई जरूरत पड़ गई तो हम उसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा निकल जाता है। लेकिन एसआईपी के थ्रू अगर हम हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिन बना रहता है और अपने आप पैसा कट के इन्वेस्टेड होता रहता है। और एसआईपी के थ्रू अगर हम फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एसआईपी ही सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें अगर देखिए आपने एक समय तक पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, 60 साल तक मान लीजिए, और 60 साल के बाद आपको अपना हर महीने खर्चा पूरा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए आपका एक चीज और अच्छी है कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा अपना जो फंड है उसे ब्रेक करके पूरा पैसा आप निकाल लें, ऐसा नहीं जरूरत है आपको करने की। आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें क्या होता है कि आपको हर जितनी की भी जरूरत है हर महीने उतने की आप एसडब्ल्यूपी लगा दीजिए। उतना ही पैसा आपकी स्कीम से कट के आपके अकाउंट में आएगा और आप अपने अकाउंट से निकाल के यूज कर सकते हैं। बाकी पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट रहेगा और जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसका फायदा उसको मिलता रहेगा। तो इसमें ये बहुत अच्छा रहता है। अगर हम एफडीआर करते हैं, मान लीजिए 10 लाख की हमारे पास एफडीआर, अगर हमको उसमें पैसा निकालना है तो पूरी एफडीआर ब्रेक करनी होगी, तभी हमको उसमें से पैसा निकाल पाएंगे। तो इस म्यूचुअल फंड में हमको ये एक फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा देखिए कि अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट रखिए। अगर आप फ्यूचर में कभी भी कुछ चेंज करते हैं तो वहां भी अपडेट करवाइए। ठीक है, नेट बैंकिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको जरूरत है किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की तो आप वहां से एडवाइस भी ले सकते हैं। देखिए अगर आपको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आपको जो जो बातें ध्यान में रखनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं, पैटर्न एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की टर्नओवर कितना है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ऑर्डर बुक उसका देखिए, कंपटीशन देखिए, अपनी इंडस्ट्री में कैसा कंपटीशन है, उसका हेडविंड्स टेलविंड्स क्या है, इन सब चीजों को आपको देख के इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए अगर आप ये इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखिए आप जब किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लेते हैं ना, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी जब आप पार्ट ओनर बन गए तो उसके बाद कंपनी को जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होंगे, जो भी वो डिविडेंड, बोनस, शेयर जो भी डिक्लेयर करेंगे वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप एनुअल रिपोर्ट रिसीव कर सकते हैं उनसे, उनकी जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए सभी लिस्टेड कंपनीज को जो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होती है उनको साल में एक बार एजीएम करवाना जरूरी होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी के जो भी बड़े लोग हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको अगर कंपनी की कोई पॉलिसी सही नहीं लगती है, ठीक है, या फिर सही लगती है, तो आप उसके फेवर में या अगेंस्ट में
वोट भी कास्ट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू इसमें क्या कहते हैं, वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी कंपनी की जो और मीटिंग्स होती हैं उसमें आप अटेंड करने का आपके पास राइट होता है। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का ग्रीवेंसेस आपके सामने आता है तो आप कंपनी से कंप्लेन करिए। अगर वहां से सॉल्व नहीं होता है तो आप सेबी की जो स्कोर्स की वेबसाइट है scores.gov.in, उसमें आप अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। आप ये देखिए कि सेबी से रजिस्टर्ड जो इंटरमीडिएट्स है वहीं उन्हीं के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो सेबी से रजिस्टर्ड वो है या नहीं है। अगर किसी एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो वो एएमसी सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सब चीजें देखिए। इसके अलावा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, पूरे इन्फॉर्म तरीके से पूरा फंड, जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करें। और बेकार में आप क्या कहते हैं, शेयर्स को परचेस ना करें। कोई अगर आपको नहीं जरूरी लगता है तो इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए और पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए कि आपको लगा कि भाई मार्केट डूब रहा है तो मेरा पैसा ना डूब जाए, आपने फटाफट से सेल कर दिया। इस तरीके से नहीं खरीदना और बेचना चाहिए शेयर्स को। ठीक है, और ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर आपको मान लीजिए कोई सोशल मीडिया में आपको कोई इन्वेस्टमेंट टिप मिलती है, आजकल आती रहती है इन्वेस्टमेंट टिप। ठीक है, फेसबुक में आप देख लीजिए, व्हाट्सएप में है या फिर इंस्टाग्राम में, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी टिप आती है तो उसमें आपको बिलीव नहीं करना। पहले उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, किसी से एडवाइस लेनी तो एडवाइस ले लीजिए, उसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ब्रोकर से आप उसकी ब्रोकरेज के बारे में, कमीशन फीस के और भी अगर कोई चार्जेस है उनके बारे में पहले से ही क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को करिए। और देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सिक्योरिटीज की डिलीवरी के साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नोट भी लीजिए विद इन 24 आवर्स। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? एक सबूत होता है कि आपकी आज की ट्रेड डन हो गई है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने ब्रोकर से आपको जरूर लेना चाहिए। अपने ब्रोकिंग अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो आपका सेविंग अकाउंट नहीं है। ठीक है, जितनी जरूरत हो केवल उतना ही पैसा रखिए। इसके अलावा देखिए, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है, ये कभी भी डीपी या ब्रोकर को ब्लैंक साइन करके नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चेक की तरह है। अगर आपने इसको ब्लैंक साइन करके दे दिया तो क्या होगा, वो हो सकता है कि आपके शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट से फिर दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो इसलिए कभी भी ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को साइन करके ना दें। इसके अलावा अपने बैलेंसेस को वेरीफाई करते रहे टाइम टू टाइम, डीमैट अकाउंट टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और अपना एसएमएस अलर्ट जो है मोबाइल में सब्सक्राइब करवा लें, ताकि अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी आपको लगता है कि आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो आपके पास नॉलेज, आपके पास मैसेज आ जाए। इसके अलावा देखिए, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए। अपना नो योर क्लाइंट, इसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप साल में 50,000 रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसलिए पैन कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट देके आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एएमसी के पास हमेशा अपनी अपडेट रखिए। ठीक है, रीड रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जब भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसको जरूर पढ़िए। अपने अकाउंट स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीपी अकाउंट, सारे के सारे अपने वेरीफाई करिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई भी तरीके की लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी लग रही है जो आपकी मर्जी से नहीं हुई, तो अपने स्टॉक ब्रोकर को तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वहां से आपकी कंप्लेंट नहीं एड्रेस होती है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में, ऑनलाइन पोर्टल पे, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर रिटर्न लेटर लिख के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो इन्वेस्टर ग्रीवियंस रेजोल्यूशन पैनल है, IGRP, वहां आप अपनी कंप्लेंट सबमिट कीजिए। और वहां से भी अगर ना हो तो क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है, वहां पे आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, EKYC का प्रोसेस आपको करना होगा। सेबी ने अपने जो इन्वेस्टर्स है उनकी प्रोटेक्शंस के लिए कुछ मेजर्स लॉन्च किए हैं। तो इसमें EKYC है, जिसमें आप ऑनलाइन KYC प्रोसेस के थ्रू अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो शेयर्स को खरीदे और बेचे, तब तो आप उसे साइन करके दीजिए, POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो खरीदे बेचे, आप खुद से हैंडल करेंगे, तो वो मैंडेटरी नहीं होता। आपको कोई अगर कोई कहता है तो आप उसको साइन करके ना दें, आपकी मर्जी के बगैर। ठीक है, देखिए, प्लेज और रिप्लेज क्या होता है कि आपके पास जो शेयर्स हैं, आप उनको गिरवी रखकर आप क्या कर सकते हैं, पैसा जो है वो उधार ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़िए, है ना, किस में कितना रिस्क है, किस स्कीम में कितना टाइम होराइजन के लिए है ना, ये सब चीजें अच्छे से समझ के पढ़ के ही आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। इसके अलावा देखिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कुछ फी कैप है जो सेबी ने डिसाइड की है। कई कई लोग क्या होता है बिना सोचे समझे ज्यादा भी ले लेते हैं, तो 1,25,000 पर क्लाइंट है। देखिए हमारा विजन क्या है कि जो हमारी वुमेन्स हैं उनको एजुकेट करना, एम्पावर करना, ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन को भी खुद से ले सके। क्योंकि ऐसा होता था पुराने समय में कि वुमेन्स अगर अर्न भी करती हैं तो उनकी फाइनेंशियल डिसीजन उनके हस्बैंड या उनके फादर लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, आज के समय में हमारे सभी वुमेन्स अच्छी एजुकेटेड है, सबको पता है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, ठीक है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो आज के समय में वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकती हैं और खुद से इन्वेस्टमेंट्स को भी कर सकती हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। I would like to thank again Bombay Stock Exchange, Harmony Talks and Advisor Organization जिन्होंने इस सेशन को यहाँ पे कंडक्ट करवाया है, and all the participants जिन्होंने हमको अपना यहाँ पे समय दिया है। So participant अगर कोई क्वेरी हो तो Okay. So now I request the audience to share their questionnaires, if any, in the chat window or unmute and ask. If you have any queries, so please unmute yourself or ask to our trainer. हॅलो, हा काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. जर की कोणाला कोणतीही क्वेश्चन्स आहेत तर तुम्ही विचारू शकता आमच्या ट्रेनरशी. हॅलो, कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता. अर्चना मॅम क्वेश्चन नाही तर मग मी एंड करू सेशनला. हा 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 मॅडम, जस्ट मिनिट. हा, काहीच प्रश्न नाही विचारायचे ना? सो ओके, थैंक यू मैडम. पांडे मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, ये हम सभी को बताया. तो मैं अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए पीयूष नाले सर को आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू मॅडम, धन्यवाद. हा, आज आपल्याकडे फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय अकोला तुमचं व्हॉइस नाही, तो नाही, स्पीकरचं स्पीकर. आज आपल्याकडे फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय अकोला व ऍडवायझरी ऑर्गनायझेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानात वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम आयोजन करण्यात आले. आजच्या या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर जगदीश साबू सर यांनी आपल्याला बहुमूल्य असा वेळ देऊन आपल्याला अमूल्य असे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या कार्यशाळेला मार्गदर्शन म्हणून लाभलेले सर्टिफाईड फायनान्शियल अँड कॉर्पोरेट ट्रेनर महिमा पांडे मॅडम यांनी अतिशय उत्तमरित्या आपल्याला बहुमूल्य असे मार्गदर्शन केलेले. मॅडमनी आपल्या या वेबिनार मध्ये आपल्याला सांगितलं की लॅक ऑफ फायनान्शियल एज्युकेशन बद्दल आपल्याला माहिती दिली. प्रॉपर बजेट कसं बनवायचं जेणेकरून आपल्याला आपल्या भविष्याची चिंता, भविष्यामध्ये काही अडथळा आले तर
त्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याच्यासाठी त्यांनी प्रॉपर बजेट सांगितलं. फायनान्शियल गोल सेटिंग कशी असली पाहिजे याच्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. असेट अलोकेशन याच्याविषयी त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. आणि महत्वाचं म्हणजे कंपॅरिझन सांगितली पीपीएफ आणि म्युच्युअल फंड मध्ये काय कंपॅरिझन आहे. म्हणजे पीपीएफ मध्ये आपण पैसे इन्व्हेस्ट केले 15 ते 20 वर्षापर्यंत आणि म्युच्युअल फंड मध्ये आपण पैसे इन्व्हेस्ट केले तर दोघांमध्ये काय कंपॅरिझन होईल याच्याबद्दल त्यांनी व्यवस्थितरित्या आपलं मत व्यक्त केलं. आणि सगळ्यात शेवटी डूज अँड डोंट्स म्हणजे काय करावं काय नाही करावं याच्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. मॅडम, आपल्या या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. तसेच वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉक्टर पिसोळकर सर व प्राध्यापक कावळे सर यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. या सगळ्या कार्यक्रमांचं ऑर्गनायझेशन करणाऱ्या डॉक्टर अर्चना खंडेलवाल मॅडम हा पूर्ण कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा इथे आभार व्यक्त करतो. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो. हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे असे आपले विद्यार्थी अतिशय तत्पर आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा इथे आभार व्यक्त करतो. व अध्यक्षांच्या परवानगीने हा वेबिनार इथेच संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद मॅडम. सर गुगल फॉर्म लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये चॅट डिस्क्रिप्शन मध्ये आस्था मॅडमनी लिंक पाठवलेली आहे फीडबॅक फॉर्मची. त्याने तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल. तसं मी ग्रुपमध्ये पण टाकून देईल. तर तो फीडबॅक फॉर्म सगळ्यांनी भरायचा आहे. थँक्यू मॅडम. Okay, thank you so much, Piyush sir. So if you have any further questionnaires on financial planning, request to fill out quickly questionnaires. The form link has been shared in the chat window. Hope it is visible. मी घेतली लिंक कॉपी. So now, hope you have had a wonderful session with us. Thank you for your active participation. Those of who wish to know more about Harmony Talks and its initiative can please visit our website harmonytalks.com. Now it's time to say goodbye from all of us and look forward to engage with those of you who believe in our mission of financial empowerment and would like to support us. Thank you so much, all of the participants. Thank you, Archana ma'am, and thanks to Piyush sir for conducting session. And also I thanks to Principal sir, GM Shabu sir. Thank you so much for attending this session. Thank you so much, all the participants. Lastly, I thanks to Mahima ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks to all of you.